हे वेलकम बच्चों, वेलकम टू एपी कैम सर्कल और आईपी सीरीज बैक। तो आज हम लोग एक क्लास 11th के लिए वीडियो डालने वाले हैं जिसमें हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे बाय हाफ सेल रिएक्शन मेथड। ठीक है, चलो। क्योंकि बिकॉज आई फील स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मोस्टली इसी में प्रॉब्लम आती है। दो इट्स द चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, बट फिर भी इसको कराना थोड़ा ज़्यादा बेटर है। एंड in the meantime, whatever topics you like, कि सर ये टॉपिक अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, so I'll try to explain the topic with the help of my channel. Okay, so keep sharing and subscribing this channel to others also. चलिए, तो we'll start with this. हम start करते हैं किससे? Balancing of redox reaction से। चलो, so first of all redox reaction. तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं बेटे, व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, देन ओनली वी कैन स्टार्ट बैलेंसिंग। खैर, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, जिसमें दोनों चीज एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। नाउ ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स, इफ वी talk in terms of layman language, addition of oxygen is known as oxidation, and similarly addition of hydrogen is known as reduction. ठीक है? Now in modern concept we deal in another terms, like addition of electrons is known as reduction and loss of electrons is known as oxidation. This is your oxidation and reduction in terms of classical concept, in terms of modern concept. तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? So what is oxidation, what is reduction? So suppose if I'll talk in terms of modern concept, Zn plus CSO4 gives ZnSO4 plus Cu. Now you all know, because before starting this balancing of redox reaction, you must be aware of the rules to calculate oxidation state. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आना चाहिए। तो सबसे पहले those elements which are in their pure state, that is not in their combined state with any other different element, generally we consider their oxidation state as zero. Okay, so its oxidation state is zero because it is in pure form. I'll put it with another color, zero, and it is also zero. So for zinc it is zero, for copper it is zero. Now in this case, like in copper sulfate and zinc sulfate, to calculate oxidation state of copper, one another method is also there. We do not calculate each and every oxidation state of each and every element in this. So better is to remember the valencies of the cations and anions. Now here sulfate has valency -2. That means it must have +2. Why? Because compound is neutral. Similarly in this case also sulfate is there, it is have -2, then we have +2. Okay? So we have noted down the oxidation states. Here zinc's oxidation state is increasing and from 0 to it is going to +2. So increase in oxidation state is also known as oxidation. Okay, this is again modern concept. And if we see this copper is showing decrease in oxidation state from +2 to +0. So there is decrease in oxidation state, it is reduction. Done. So increase in oxidation state is known as oxidation and in decrease in oxidation state is known as reduction. So this is the modern concept. Now we'll start balancing. So one more thing I want to tell you, half cell reactions. ये क्या होती है? One half, if we have a redox reaction, oxidation reaction is known as, only oxidation reaction is known as oxidation half cell reaction. And the reaction in which reduction is going on, we call this reduction half cell reaction. For example, in this case, Zn, after losing 2 electrons, it is forming Zn2 plus. So this means oxidation is going on, loss of electrons is going on. So we call this oxidation half cell reaction, OHCR. Similarly, copper 2 plus getting 0, so that means it has gained 2 electrons which are lost by zinc and attained 0 charge. So here gain of electrons is going on. This means it is reduction half cell reaction. Okay, these two are half cell reactions. Now we have to balance
a redox reaction, general redox reaction by half cell reaction method, which we also call ion electron method. How do we have to balance this? For this, you must know certain rules, certain steps which we follow to balance a redox reaction. Okay. Now, in case it depends upon your school, in how many marks this question is coming. It is of 3 marks, it is of 2 marks, but not less than 2 marks. Okay. So here every step counts. Every step have marks, that is half marks. So please just write the headings and then do your working goals. Okay. So it will complete near in 1.5 page or 1 page. Okay. Chaliye. So we'll start with the rules, steps to be followed in balancing of a redox reaction by half cell reaction or ion electron method. Okay, so these two methods are same. These are not actually two, these are the same methods. They are two names of same method. So first of all, we have the first step in this. Split the given skeletal reaction into two half cell reactions and calculate oxidation state of each element. Done? तो आप लोग बोलोगे सर ये स्केलेटल रिएक्शन क्या होती है? चलो स्केलेटल रिएक्शन बताते हैं पहले. तो सबसे पहले इस स्केलेटल रिएक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज दिस स्केलेटल रिएक्शन? ये क्या है? Suppose whatever question we have given you, that we call skeletal reaction. One example, एक example आपको देता हूँ. We have given you Cr272 minus plus Fe2 plus H ion gives Cr3 plus Fe3 plus H2O. Now this which I have written in blue letters, blue color, this reaction is known as half cell reaction. This is skeletal reaction. Sorry, this is your skeletal reaction. Now you have to divide this skeletal reaction. You have to split this. इसको आपको split करना है. So first step is splitting the given cell reaction into two half cell reactions and calculate oxidation states of each element. Done? So I hope and you must know the rules to calculate oxidation states. ठीक? तो सबसे पहले बहुत बड़ी महाभारत नहीं है इसको डिवाइड करना. यू ऑल नो दैट एक इंसान से एक इंसानी बनेगा, इंसान से एक एलिफेंट नहीं बन सकता. सिमिलरली एक सीआर से एक सीआर ही बनेगा, एक एफई से एक एफई ही बनेगा. सो इट इज इजी टू स्प्लिट द रिएक्शन. इस रिएक्शन को स्प्लिट करना आसान है. तो इस पहले स्टेप में हम चलते हैं. सपोज मैंने इस स्केलेटल रिएक्शन को स्प्लिट किया तो आई हैव रिटन Cr2O72 minus gives Cr3 plus. Done? One I have splitted. Second, it is Fe2 plus gives Fe3 plus. Done? So I have splitted this reaction. मैंने splitting कर दी. ठीक है. अब splitting करने के बाद मैंने काम और बोला, calculate oxidation state of each element. कैसे निकाले? For this you know the rules. We have let it be, इस x का निकालना है Cr का. So let it be x, 2 into x. So we'll write, मैं साइड में यहाँ पे कर देता हूँ अलग से, 2 into x plus oxygen has -2 oxidation state and equal to this -2 charge, which is the actual charge carried by Cr2O72 minus. So this will become 2x minus 14 equal to -2. So x equal to +6. So here this Cr1 Cr has +6 oxidation state. Okay, and one Cr has 3 plus oxidation state. Here Fe has 2 plus, here Fe has 3 plus. So you can also remember in the first page I told you increase in oxidation state is oxidation. So here in Cr from +6 to +3 it is decreasing. So this is your reduction half cell reaction. Done? And in this case from 2 plus to 3 plus it is known as
oxidation half cell reaction. So it is easy to split the reaction and to calculate oxidation states. This is the first step which we follow during half cell reaction method. Done? तो ये आपका पहला मेथड. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, आई विल गेट साइड. ठीक, तो ये फर्स्ट स्टेप है बेटे. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू द सेकंड स्टेप. अब हमारे हैं सेकंड स्टेप पे क्या करना है हमको. नाउ सेकंड स्टेप कंप्राइजेस ऑफ वी balancing only those species which have undergone change in ऑक्सीडेशन स्टेट. आपको सिर्फ उसको बैलेंस करना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है. ठीक है. नाउ आई टेक रैंडम एग्जांपल्स. लाइक सपोज मेरे पास था Cr2O7 2 माइनस और यहाँ पे 6 प्लस था एंड आई हैव रिटन Cr3 प्लस. तो मैं किसको बैलेंस करूंगा? ऑक्सीजन तो मैं बैलेंस नहीं करूंगा. आई विल बैलेंस ओनली Cr. Here we have 2 Cr, here we have only 1 Cr. We will write multiplied by 2. Done? So this is how we balance it. ठीक है. One more thing. In this skeletal reaction, if you see this skeletal reaction, we have HN and H2O. I have not written it somewhere. This is your choice whether you want to write it with Cr2O7 or Fe2 plus. There is no hard and fast rule for this. We can add HN with the Cr2O7 and H2O with Cr3 plus. Or someone other wants to write HN with Fe2 plus and H2O with Fe3 plus. It's okay. Done? तो चलिए उसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बट ये आप याद रखना. सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया H2O and I have written plus HN here. तो ये स्प्लिट छूट गया था मुझसे. नाउ सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया. वी हैव बैलेंस्ड ओनली दैट स्पीशीज व्हिच हैव अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज द सेकंड रूल. दिस इज द सेकंड स्टेप व्हिच वी हैव टू फॉलो. नाउ द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या है भाई? चलिए थर्ड स्टेप पे आते हैं. Once we have balanced oxidation state or once we have balanced the element which are undergone change in oxidation state, after that we have to balance charge, that is positive charge of those species which have undergone change in oxidation state. Okay, कैसे करेंगे? तो we'll write balancing charge. कैसे बैलेंस करना होता है? By adding required number of electrons on positive charge excess side. ठीक है. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्सेस साइड. कैसे करेंगे देखते हैं. इसी के चलते हैं. वी हैव Cr2O7 2 माइनस. It has 6 plus charge. We have 2 Cr3 plus. It has 3 plus charge. Now, if you see this charge which I have written 6 plus, it is only on 1 Cr. It is not on 2 Cr. So here we will multiply 2 by 6. It will become 12 plus. So here on this side we have 12 plus charge, and on this side 2 into 3 we have 6 plus charge. So where positive charge is excess? It is excess on लेफ्ट हैंड साइड. सो वी विल ऐड. कितना एक्सेस है? वील ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए. क्यों किए बेटे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड? एनीवन? उसका रीजन 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए ऐड किए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज हम कंसीडर करते हैं. सो इफ वी सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम दिस 12 इट विल बिकम 6 व्हिच इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज हाउ यू बैलेंस चार्ज. ओके, एक एग्जांपल और देता हूं. सपोज आई हैव I-1 हियर and I have iO3 1 minus here. ठीक है. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 5 प्लस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -1. तो कैसे बैलेंस करूं? मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट रिटन, यहाँ पे -1 है, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस इधर है. कितना एक्सेस है? 6 चार्ज ज्यादा है, 6 चार्जेस एक्स्ट्रा. सो आई विल ऐड 6 इलेक्ट्रॉन. क्यों? when we'll subtract 6 minus 5 it will get 1, that is -1 -1 बराबर हो गया. दिस इज हाउ विल बैलेंस चार्ज. इस तरह से हम चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं. ठीक है, चलो दिस इज सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप वी हैव बैलेंसिंग
इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन्ड, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। आप सब कुछ कर लो, अगर ये स्टेप आपने नहीं किया तो जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यही क्लास 10 पे भी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टेप्स में, जो हम वेरियस सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड दैट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस गेन बैलेंस नहीं होते थे, सो वी हैव टू बैलेंस दैट। सेम यहाँ पे भी है। सपोज मेरे पास दो इक्वेशंस थी, Cr2O72 माइनस, अच्छा इसके लिए करना है क्या, पहले तो लिखवा देता हूं मैं रूल, तब मैं बैलेंस करूंगा इसको। देखो कैसे बैलेंस करना है। टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, we have to multiply an equation by a required number or both equation by required numbers। दोनों पे आपके करके दिखाता हूं भी कैसे। सपोज मेरे पास था बेटे, अभी एक इक्वेशन में पीछे लिखी थी अभी, Cr2O72 माइनस गिव्स Cr3 प्लस, यहाँ 2 था, यहाँ पे हमारा 6 प्लस चार्ज था, है ना। यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए थे। नीचे थी हमारे पास इक्वेशन Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बैलेंस हो गया, चार्ज तो बैलेंस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस गेन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 6 गेन हो रहे हैं, यहाँ पे एक लॉस हो रहा है। सो हमने क्या लिखा है, वी हैव टू मल्टीप्लाई एन इक्वेशन, तो यहाँ एक ही को मल्टीप्लाई करना है। विल मल्टीप्लाई दिस बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, जैसे लिखा ये हो जाएगा 6 6 और 6, ये हट गया। ठीक है, वी हैव मल्टीप्लाइड ईच इक्वेशन बाय 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए और 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, बराबर हो गया। ये तो सिर्फ एक इक्वेशन की बात थी, कभी कभी दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल I have Cr3 plus, I have Fe2 plus gives 3 plus gives Fe2 plus. Now in this case 3 electrons have been added to balance the charge, here 1 electron is added to balance the charge। ठीक है जी, तो यहां पर क्या हुआ, इसको 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे 3 हो रहे हैं, तो इस केस में भी हमें इस सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, so that equation gain and loss and gain must be equal। अब एक ऐसी इक्वेशन की बात करता हूं जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, चलिए। सपोज आई हैव Cr3 प्लस गिव्स Cr एंड Fe गिव्स Fe2 प्लस। यहां पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखे बेटे, यहां पर हमने, सॉरी नॉट ऑन दिस साइड, इट इज ऑन अपोजिट साइड। On this side we have added 3 electron, 0 चार्ज हो जाएगा। On this side we have added 2 electron। चार्ज तो बैलेंस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस गेन बैलेंस नहीं है। कैसे करें, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली इक्वेशन को 3 से। So this is an example of equation in which we have to multiply both the equations by the numbers, required numbers. Then only electron loss gain can be balanced। ठीक है, तो ये आपका रूल था, that is रूल नंबर 4, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। कैसे बैलेंस करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एन इक्वेशन बाय रिक्वायर्ड नंबर और बोथ इक्वेशंस बाय द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, तो ये आपके पास इसका 4th स्टेप है। डन, चलिए 5वें स्टेप पे आते हैं बेटे। स्टेप नंबर 5, बैलेंस थर्ड एलिमेंट which have not undergone change in oxidation state। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है, सबसे पहले उसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पहले। कैसे करना है, बाय एडिंग सेम कंपाउंड through which it has entered
इन केमिकल रिएक्शन। अभी समझाता हूं इसको भी। जैसे सपोज बेटे मेरे पास एक इक्वेशन थी Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice। इसको ऐसे करता हूं मैं, ठीक है। Cu gives NO3 whole twice। एक इक्वेशन ये है, थोड़ा बड़ा कर दें क्योंकि थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया। चलिए, we have Cu, this gives CuNO3 whole twice, एंड दूसरी तो हमारे पास है NO gives HNO3 gives NO plus H2O। ये टोटल अगर आप ऐड करोगे आपकी टोटल रिएक्शन बन जाएगी, ठीक। नाउ इन दिस केस ओनली Cu has चेंज अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। Cu से Cu2 प्लस हो गया, यहाँ पे N था +5, यहाँ पे N हो गया +2। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। चार्ज वार्ज बैलेंसिंग सब हो चुका है मान लेते हैं। अब हमको यहाँ पे Cu तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे N बैलेंस है, इसमें N कैसे ऐड करें? ये थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है। तो ये कहां से आया होगा? NO3। ये आया HNO3 से। तो जितने मेरे पास यहाँ पे N होंगे बेटे उतने HNO3 में इधर ऐड करूंगा, ठीक। मेरे पास 2N है, 2NO3 है, सो आई विल ऐड ट्वाइस ऑफ HNO3 टू बैलेंस NO3 कंप्लीटली, ठीक है। जब आप थर्ड एलिमेंट को बैलेंस करते हो बाय एडिंग द सेम कंपाउंड, ऑटोमेटिकली समटाइम्स इट हैपेंस दैट ऑक्सीजन आल्सो गॉट बैलेंस्ड, अपने आप बैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन। तो सेपरेटली ऑक्सीजन को बैलेंस करने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप 5। ये बहुत रेयर इक्वेशंस में आपको मिलेगा, सारी इक्वेशंस में नहीं होता है, किसी किसी इक्वेशन में होगा, एंड दिस इक्वेशन इज द इंपॉर्टेंट वन। इस इक्वेशन में जरूर मिलेगा आपको ये, ठीक है। चलिए स्टेप 6 पे आते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड लास्ट स्टेप। टू बैलेंस ऑक्सीजन, to balance oxygen, add required number of water molecules on oxygen deficient side, ठीक है जी। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, कैसे करें? आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना पड़ेगा जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है। चेक कर लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन थी Cr272 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस, यहाँ पे हमने वाटर लिखा था सबसे पहले, याद होगा आपको, यहाँ पर H आयन लिखा था, है ना। अब इस इक्वेशन में आप देखो कितने हैं, यहाँ पे 7 वाटर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, कितने की कमी है? 6 की। सो वी विल ऐड 6 वाटर, वी विल ऐड 6 वाटर ऑन दिस साइड। हो गया बेटे ऑक्सीजन बैलेंस, इजी है ऑक्सीजन बैलेंसिंग। चलिए last step, that is step number 7, to balance hydrogen H। H बैलेंस करने के लिए we have two different mediums, acidic और basic। आपको जैसे दिख रहा होगा सब ऊपर वाली इक्वेशन में, we have H ion। H ion comes from an acid, so we have to balance this H in acidic medium। in acidic medium add required number of H ions on H deficient side, ठीक है बेटे। जिस तरफ H की डेफिशिएंसी होगी वहीं H ion ऐड कर देने। फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को देखो ऊपर, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे कितने टोटल? 12 और 2 14, यहाँ कितने की कमी है? 13 की। सो आई विल ऐड 13 H ion onto this side, 1 H ion is already present, and Cr2O72 minus gives 2Cr3 plus 7H2O। नहीं हो गया H बैलेंस, यू कैन सी यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, हो गया H बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट दिस इज एन एसिडिक मीडियम। अगर यही इक्वेशन मेरे पास बेसिक में होती तब क्या करता? टू बैलेंस H इन बेसिक मीडियम, ये वाला थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से देखना। टू बैलेंस H इन बेसिक मीडियम add required number of H2O molecules on
H deficient side and same time same number of OH ions on opposite side. अगर आपने दो वाटर ऐड किए तो दो OH भी ऐड करने हैं. पिछली क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं. Cr2O7 माइनस, यहां पर हमारे पास है OH माइनस, ठीक है. यहाँ पे बेटे 2Cr3 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास O बैलेंस करने के लिए हमने लगा दिया है 8H2O, क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 ऑक्सीजन थे, ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 16. यहाँ OH है, OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम. तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 16 H है. कितने H की कमी है बेटे, कितनी की कमी होगी, 15 की. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 15 वाटर ऑन हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड and same number of 15 OH minus on hydrogen excess side. ऐसा क्यों किया, बिकॉज जब ये स्प्लिट होगा 15 H आयन देगा और 15 OH आयन देगा. तो जो आपने अगर OH आयन ऐड किया है ये इससे नलीफाई हो गया, नहीं हो गया नलीफाई, इट गॉट नलीफाइड. तो अल्टीमेटली आपने 15 H ही ऐड किए, बट क्योंकि ये बेसिक मीडियम है वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड H आयन, हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है बेटे. तो ये था आपके पास बैलेंसिंग ऑफ क्या, H इन बेसिक मीडियम. तो इस तरह से हमने पूरी स्टेप्स सीखे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बाय हाफ सेल रिएक्शन मेथड, ठीक है. तो एक बार मैं दोबारा से देख लेते हैं. ऑन द फर्स्ट पेज I have discussed about half cell reaction and increase and decrease in oxidation state with the help of which we can identify oxidation and reduction reaction, ठीक है. सेकेंड स्टेप में हमने एक एक करके स्टेप फॉलो किए. पहला स्टेप हमारे पास आया कि स्केलेटल रिएक्शन क्या होती है एंड हाउ वी कैन स्प्लिट दिस स्केलेटल रिएक्शन इनटू टू हाफ सेल रिएक्शंस, ठीक है. दूसरा स्टेप हमारे पास आया टू बैलेंस ओनली दोज स्पीशीज व्हिच हैव अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. हमने वो भी बैलेंस कर लिया बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है. देन वी हैव स्टार्टेड बैलेंसिंग चार्ज. तो हमने चार्ज को बैलेंस किया, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है उन्हीं का चार्ज चेक किया जाता है. सो वी हैव चेक देयर चार्ज. एक Cr के ऊपर 6 प्लस था, दो के ऊपर 12 होगा. सो वी हैव एडेड 6 इलेक्ट्रॉन ऑन दिस साइड टू बैलेंस 6 प्लस 6 प्लस. सिमिलरली अदर रिएक्शन आल्सो, ठीक है. Then we have came to the most important step, that is balancing electron lost or gained. हमने इसको बैलेंस किया कि भैया कैसे बैलेंसिंग करनी है. Either we have to multiply only one equation by a certain number, और हो सकता है there is no need to balance. क्यों, अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. But sometimes it happens, ये बहुत कम होता है, लेकिन मेजॉरिटी में you have to balance them by multiplying an equation or both the equations by required numbers, ठीक है. Then coming on to balance the third element, जैसे थर्ड एलिमेंट यहाँ पे नाइट्रोजन आया था, you have to add HNO3 on this opposite side where nitrogen is not present, okay. तो ये हमने इस तरह बैलेंस किया. Then we have came on the step 6 to balance oxygen. We add required number of water molecules on oxygen deficient side कर दिया, ठीक है. And last हमारे पास आया to balance H either in acidic or basic medium. तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, we have added acidic medium के लिए directly H ions on the hydrogen deficient side. And in the last step we have added in basic medium, we have to add required number of water molecules on hydrogen deficient side and same number of OH ions on hydrogen excess side, ठीक है. तो इस तरह से हमने रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखी. आई होप सबको समझ में आएगी. आधे घंटे का वीडियो है, पूरा देखो, आराम से देखो, एंड हेल्प हो जाती है, ठीक है. इसलिए दैट्स व्हाई आई एम पोस्टिंग दीज वीडियोस. कुछ हेल्प हो जाएगी स्पेशली मेरे स्कूल वाले बच्चों की, क्योंकि पता नहीं पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं स्कूल में. वी जनरली हमारे पास इतना टाइम भी नहीं हो पाता कि हम बहुत डिटेल में घुस पाएं उसकी चीज़ के, बिकॉज ऑफ यू ऑल नो दैट रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, वेकेशंस पढ़ती रहेंगी, छुट्टियाँ होती रहेंगी, तो बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ होता है. सारे स्कूल्स का ऐसे ही होता है. सो कीप ऑन शेयरिंग दीज वीडियोस, कीप ऑन लाइकिंग करो ना करो, भगवान जाने कैसे लाइक करोगे, बट थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग. थैंक यू बच्चों, वेलकम.